हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th का भूगोल का अध्याय 3, यानी देखा जाए तो ये कक्षा 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर जो है 3rd है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम ड्रेनेज सिस्टम के विषय में चर्चा करेंगे, यानी अववाह तंत्र, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और इस चैप्टर में जो है हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे कि अववाह तंत्र जो है किस प्रकार जो है इम्पोर्टेंट है। और देखा जाए तो एग्ज़ाम व्यू से ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, तो जितना हो सके इसको अच्छे से लर्न कीजिए, समझिए और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। और ये क्वेश्चन हर समय महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कीजिए। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज क्या है। द नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। State a some economical benefit of river and lake. There is a most important question here according to the exam view. The state some economical benefit of river and the lake. You know that first point here, lake. Lake is a benefit here. The lake are of a great value to the human beings. There is important here, lake are a great value to the human beings. And second point, takes a help to the regulate the flow of river. There is a lake help to the regulate the flow of river. There is important benefit. Lake help to the prevent of flooding during to rainy season. There is important point here. The lake help to the prevent of flooding of the during to rainy season. And the next point, during the dry season, lakes help to the maintain on even flow of water. There is important, during the dry season, lake help to be maintained on even flow of water. And the lake can be also be used for the developing hydropower. There is a most important, the lake can be also be used for the developing of hydropower. It is important. The next point here, there is a moderate the climate of the surrounding and maintain the aquatics ecosystem. There is important point here, there is surrounding and maintains the aquatic ecosystem. The next here, the enhance to natural beauty and the help to the developing tourism and provide to the recreations. The example, Dal Lake and Naini Lake at the Nainital. There is a most important here example, Dal Lake and Nainital Lake at the Nainital. Naini Lake is a Nainital. And the lakes will provide to the opportunity for a fishery development. You know that there is a most important point discussing here. The next here, river. The river, there is a help to develop to the hydropower. The generally there is the most important, they help to the develop hydropower. And second point, they provide to water for a irrigation, for a drinking and other requirement. There is a river is the most important irrigations and play the important role for a drinking and other requirement. And there is the last point, they help to develop a fishery. There is important river here, there is a help to the develop of फिशरीज। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नदियां और झीलों के कुछ आर्थिक लाभों का उल्लेख करना है, यानी बताना है कि नदियां और झीलों के क्या आर्थिक लाभ है। तो देखा जाए तो ड्रेनेज चैप्टर यानी जल जो प्रवाह तंत्र है उसके अंतर्गत ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि नदियों और झीलों के आर्थिक लाभ क्या हो सकते हैं। तो पहला जो है आंसर के रूप में देखा जाए तो झील है, तो झील की विशेषता जानना हमारे लिए बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। कहते हैं झीलें मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसमें कोई दो राय नहीं, झील मनुष्य के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। झीलें नदियों के प्रवाह को नियंत्रण करने में मदद करती है। देखिए झील जो होता है, नदियों की जो प्रवाह होती है यानी पानी की जो गति होती है, उसमें जो है झील काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है। कहते हैं नदी की पानी जो होती है झील में आके इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से नदियाँ के जो है पानी की जो प्रवाह होती है वो थोड़ी मध्य हो जाती है। तो यानी देखा जाए झील जो है नदियों के प्रवाह को नियंत्रण करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है। झीलें बरसात के मौसम में बाढ़ को रोकने में भी काफ़ी मदद करती है, यानी झील जो है बरसात के जब मौसम आती है तो झील काफ़ी गहरी होती है, तो सारे के सारे पानी यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से बाढ़ को भी रोकने में काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान देती है। कहते हैं शुष्क और मौसम के दौरान झीलें पानी की एक सामान्य प्रवाह को बनाए रखने में काफ़ी मदद करता है, यानी शुष्क मौसम के दौरान जो है झीलें पानी के एक सामान्य प्रवाह को जो है बनाए रखने में मदद करती है। अब इस बात को अगर समझना चाहोगे तो साफ हो जाएगा कि झील जो होती है जहाँ पर पानी ठहरा हुआ होता है और जब सूखा पड़ता है, जब सूखा मौसम होता है, तो इस पानी का जो है हम इस्तेमाल जग कल्याण के लिए कर सकते हैं।
ठीक है। तभी जो है बड़े बड़े क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि झीलों का जो है मनुष्य स्वयं ही निर्माण करते हैं और वहाँ पर पानी इकट्ठा करके जो है जब सूखा पड़ता है तो उसका उपयोग भी करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है झील का। और झीलों का उपयोग जो है पन बिजली के विकास के लिए भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि झील का जो है पानी इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद जो है इससे बिजली भी बनाई जाती है। यानी यहाँ पर जो है टरबाइन लगा के जो है पानी की गति को नियंत्रित करके जो है बिजली जो है उत्पन्न की जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण झील की विशेषताएं हैं। अगर अगली पॉइंट की बात करें तो कहते हैं वह आपस की जलवायु को भी नियंत्रित करती है। यानी झील जो है आसपास की जलवायु को नियंत्रित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है। यानी आसपास की जलवायु जो होता है झीलों के कारण ही संतुलित रहती है। और जलीय जो है पानी तंत्र को बनाए रखने में भी झील का बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं झील से जहाँ तक मनुष्य लाभान्वित तो होते ही होते हैं, जलीय जीव भी जो है काफ़ी जो है इस पर आश्रित होती है। आपने देखा होगा कि झील हो जाने के कारण क्या होता है, जब सूखा पड़ता है तो जीव जंतु भी झीलों के ही रुख करते हैं, जहाँ से उनको जो है सूखे क्षेत्र में पानी की जो है प्राप्त हो जाती है। कहते हैं प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं। यानी झील जो है सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये भी रखता है कि प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाता है और पर्यटन को विकसित करता है। यानी पर्यटन लोग जो होते हैं मैक्सिमम जो है डल झील, नैनीताल झील के साइड जो है जाते हैं और वहाँ पर्यटन का जो है लुत्फ उठाते हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी जो है झील काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखता है और मनोरंजन प्रदान करने में मदद भी करता है। जैसे नैनीताल में डल झील और नैनी झील काफ़ी महत्वपूर्ण झील है जो पर्यटन के लिए काफ़ी विख्यात भी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है झील के अंतर्गत। अगर हम अंतिम पॉइंट की बात करें तो झील जो है मत्स्य विकास के अवसर प्रदान करती हैं। कहते हैं अगर देखा जाए तो झील में हर तरह के जो है मछलियाँ रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और मनुष्य को जो है भोजन भी प्रदान करते हैं। तो झील देखा जाए तो कई मायने में मनुष्य के लिए एक वरदान सा है, क्योंकि झील को जो है काफ़ी लोगों के लिए, काफ़ी मनुष्य के लिए, कभी काफ़ी जीव जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान अपना रखता है। अब चलिए देखते हैं नदी का क्या विशेषता है, क्यों इकोनॉमिकल इसकी वैल्यू है। नदियाँ जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि नदियों से ही झील का निर्माण होता है। तो देखा जाए तो नदियों की जो है महत्वता को हम जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। पहले के समय में जितने भी जो है शहर बसते थे वो नदियों के किनारे ही बसते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर चाहे आप दिल्ली की बात कर लो, चाहे आप कहते हैं आगरा की बात कर लो, चाहे आप कहते हैं वाराणसी की बात कर लो, हर जगह चाहे कलकत्ता की बात करो, सभी ना कोई नदियों के किनारे जरूर बसा हुआ है। तो नदी जो है कई मायने में महत्वपूर्ण है। इसके विषय में जो है आपको खुद ही समझ में बहुत कुछ है। तो कैसे अगर जनरली हम इसके पॉइंटों की बात करें, जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, तो कहते हैं जल विद्युत विकसित करने में मदद करती है। बहुत से जो विद्युत का उत्पादन होता है जल के कारण ही विद्युत का उत्पादन करने में सक्षम हो पाता है। देखा जाए तो नदी की सबसे महत्वपूर्ण है कृषि क्षेत्र में होता है, जहाँ पर सिंचाई के लिए नदियों का उपयोग किया जाता है। नदी का पानी अगर हिमालय से आ रहा होता है, जब ग्लेशियर पिघलती है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पीने योग्य होती है, लेकिन जैसे धरातल पर आती है ये दूषित हो जाती है। कहते हैं अन्य आवश्यकताओं के लिए पानी प्रदान करते हैं, चाहे आपके घरेलू कार्य हो या जो भी कार्य हो, सब में जो है नदियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इवन कि जो जीव जंतु है उनके लिए भी नदियाँ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। अगर देखा जाए तो मत्स्य पालन विकसित करने में नदी की काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहता है, क्योंकि आधे से अधिक जो हमारा भोजन प्राप्त होता है नदियों से प्राप्त होता है और इसका सबसे अच्छा स्रोत जो होती है नदियाँ ही होती है, जहाँ पर हर जीव जंतु जो है पनपते हैं, फलते फूलते हैं और मनुष्य के लिए जो है जीवन के लिए हर संभव यत्नशील होते हैं। तो देखा जाए तो मत्स्य पालन के विकास करने में जो है नदियाँ का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन सारे एग्जाम्पलों से, सारे जो है आंसरों से आप इस बात के लिए सक्षम हो गए होंगे कि झील और नदियों के जो इकोनॉमिकल वैल्यू कितनी है और कितनी ज़रूरी हमारे समाज के लिए है। तभी कहता है त्रिपाण सेंटर हमेशा कि नदियों को और झीलों को जो है दूषित ना करें। जितना हो सके जहाँ भी आप जाते हो इन क्षेत्रों में, वहाँ पर जो है कूड़े करकट ना फैलाएं। ठीक है, जितना हो सके कूड़े करकट ना फैलाएं और हो सके तो इनको सही जगह पर व्यवस्थित करें, जिससे कि जो हमारा झील है, नदियाँ हैं, वह दूषित ना हो और आने वाला समय में भी इसका जो है गरिमा बना रहे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आ गया है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में जरूर सेव करके रख लीजिए।